Good morning, students. Beta today is 9th December, and as we have done in our last class, the same we are doing today. The chapter number 12, we are going to revise it again by some extra questions. मैंने आपको लास्ट क्लास में हेरॉन्स फार्मूला चैप्टर की रिवीजन कराई थी. I have given you some questions also. Today also we are going to discuss some extra questions related to Heron's formula, which are apart from your NCERT, so that you can build up your knowledge and your frequency level. Okay, so let's write question number 1. The question number 1 is the perimeter of a triangle. The perimeter of a triangle is 50 centimeter. One side of a triangle is 4 centimeter longer than 4 centimeter longer than the smaller side, and third side is 6 centimeter less than twice the smaller side. Find the area of the triangle. ठीक है बेटा, this is the question. The question says that, now just I'll make you understand what question is saying. That there is a triangle whose perimeter is given to you, which is 50 centimeter. उसमें से जो ट्राइंगल है उसकी एक साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड. जो स्मॉलर साइड है उससे 4 सेंटीमीटर बड़ी है, और जो थर्ड साइड है वो 6 सेंटीमीटर छोटी है. ट्वाइस द स्मॉलर साइड माइनस 6 है थर्ड साइड. तो यू हैव टू फाइंड द area of triangle. Now these two sides are related to the smaller side, so I am just letting the sides of triangle as A, B and C. ओके, सो मैंने ये मान लिया कि जो B साइड है वो सबसे छोटी है. B इज़ द स्मॉलर साइड. मैंने लेट कर लिया B इज़ द स्मॉलर साइड. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट दे आर सेइंग दैट द वन साइड A is 4 times longer than the smaller side, and the third side is twice the smaller side, less than 6. Okay, and they have given you the perimeter of triangle. Now what is the formula for perimeter of triangle? It is sum of all sides, that is A plus B plus C. Now substitute the value. A is B plus 4, B is B, and C is 2B minus 6. Okay, so 2B plus 3 plus 4, so 4B, 4 minus 6 क्या हो जाएगा -2. अब देखो जो पेरीमीटर है ये 50 के इक्वल है, सो इट इज़ इक्वल्स टू 50. तो 4B की वैल्यू कितनी आ गई 52. सो B की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर. एक साइड आ गई 13 सेंटीमीटर. अब A की वैल्यू 13 प्लस 4 17 सेंटीमीटर, एंड C की वैल्यू ट्वाइस ऑफ B, दैट इज़ 26 माइनस 6 विच इज़ 20 सेंटीमीटर. तो A, B और C तीनों की वैल्यूज़ हमने निकाल दी. साइड्स हमें पता लग गई. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ओनली. हमें एरिया पता होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर, दैट इज़ पेरीमीटर बाय 2. पेरीमीटर है 50 का हाफ होता है 25. ओके, ना हमें सेमी पेरीमीटर पता है, तो वी हैव टू फाइंड S माइनस A. 25 माइनस 17 इज़ 8 सेंटीमीटर. S minus B, 25 minus 13 is 12 centimeter, and S minus C, 25 minus 20 is 5 centimeter. ये values आपको given है. These values are given to you. Now the area of triangle. What is the area of triangle by Heron's formula? S minus A, S minus B, and S minus C. Under root, what is S? S is 25. What is S minus A? It is 8. What is S minus B? It is 12. And what is S minus C? It is 5.
ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी ओपन करेंगे। 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 × 5। 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 2 × 2। और मैं 12 को क्या लिख सकती हूँ, 2 × 3। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 एंड 5। ठीक है, ये 5 एज इट इज़। अब देखो 5 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है 5। नहीं नहीं, एक और बार होगा, कहाँ गया, 5 5, 2 2 2, 2 2 3, 2 2 = 4, 3 12 एंड 5। नाउ दी हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, हम कॉमन ले लेते हैं, 5 × 5 एंड हाउ मेनी टूज आर देयर, देयर आर 2 2s, है ना। अब देखो अंदर क्या बच गया, ये जो 2 5 थे इसमें से हमने एक बाहर निकाल लिया। ठीक है, हमने एक 5 बाहर निकाला है। ठीक है, अब अंदर क्या बच गया, एक 5 ये बच गया। दो दो थे, हमने ये 4 थे तो हमने 4 बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गया, एक 2 और एक 3, दैट इज 6 एंड 6 5 = 30। तो अंदर क्या बच गया, 30। तो क्या आ गया, 5 2 = 10, 10 2 = 20। तो 20√30, 20√30। Now what is the value of √30? The value of √30 is 5.48. तो 5.48 × 20, it would be 109.6 centimeter square. So the area of triangle is 109.6 centimeter square. ठीक है, क्लियर हो गया सबको अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे था, समझ में आया सबको। हमें क्या दिया हुआ था, हमें रिलेशंस दिया हुआ है बिटवीन द 3 साइड्स। वी हैव लेट दैट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर ए बी एंड सी। बी इज द स्मॉलर साइड, द रिलेशंस आर दिस, perimeter of triangle is a plus b plus c. We have related these to the perimeter of triangle and we have find a b and c individual sides. हमने फिर क्या निकाले, area of triangle. Okay, so the next question is second one. Now let's move on to our next question, question number 2. ठीक, question number 2, just write down. We have to find perimeter, find perimeter and area of a equilateral. We have to find the perimeter and area of, not equilateral, it's quadrilateral, quadrilateral A B C D in which AB is 17 centimeter, CD is 12 centimeter, angle ACB is 90 degree and AC is 15 centimeter. This is given to you. ठीक है, we have to find the perimeter and area of this quadrilateral. So first of all make ABCD quadrilateral. Draw करो, this is a triangle ABCD, A B and C, and this is a kind of figure which is formed by this. This is 90 degree, 90 degree है, ठीक है, like this. Okay, this is given to you. Now what it is written, what it is given, that AB is 17. Where is AB? AB is 17, this is given, and AD is 9 centimeter, CD is 12 centimeter and AC is 15 centimeter, and angle ACB, इन्होंने खुद ही कहा है कि एंगल ACB जो है वो है 90 डिग्री. Fine. Now in right triangle ACB, now we are talking about this right triangle. In triangle ACB we have to find the value of BC. हमें क्या करना है, इस BC की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, क्योंकि हमें क्या करना है, we have to find the area of this quadrilateral. ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों के जो एरियाज हैं उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. मैं ACB का एरिया अलग निकालूंगी और ACD का एरिया अलग निकालूंगी और दोनों को ऐड कर दूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस क्वाड्रिलेटर का एरिया मिल जाएगा. सो नाउ आई हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ओनली. मुझे AB पता है, मुझे CD पता है, मुझे AC पता है, लेकिन मुझे BC नहीं पता. तो BC निकालने के लिए आई हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. So by Pythagoras theorem, Pythagoras theorem क्या कहती है, that AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर.
नाउ व्हाट इज ए बी? ए बी क्या है हमारी? हाइपोटेनस विच इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर. व्हाट इज ए सी? ए सी इज 15 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज बी सी? बी सी वी हैव टू फाइंड. ओके, नाउ बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर. व्हाट इज 17 का स्क्वायर? इट इज 289 एंड व्हाट इज 15 का स्क्वायर? इट इज 225. तो बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 माइनस 225 इज 49. सो बी सी की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर. बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर. तो बी सी की वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर. ठीक है, बी सी की वैल्यू आपको मिल गई. नाउ यू हैव टू फाइंड दिस एरिया, एरिया ऑफ triangle ACB. Now you have to find area of triangle ACB. What is the formula? Half multiply base multiply height. What is base? Base is BC and what is height? Height is AC. So half multiply base we have find already that it is 7 and AC is 15. So किसके इक्वल होगा ये? BC एक सेकेंड, ये हमारा 64 आएगा. So sorry, this is 64 and this is equal, it will be equal to 8. ठीक है, ये कैंसिल हो गया 4 पे, तो ये आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया? एरिया ऑफ ए सी बी निकाल लिया विच इज़ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ ए सी बी आ गया. अब बात करते हैं ए सी डी की. ए सी डी की ये भी 90 डिग्री है, तो इसका भी क्या करेंगे? हम एरिया निकालेंगे. तो इन ट्राइंगल ए सी डी, इसकी हमें क्या पता है? इसकी हमें सारी साइड्स पता है. एक है कितनी? 15, एक है 15, एक है 12 और एक है 9. ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है. अब हम क्या करेंगे? वी हैव टू फाइंड एस फर्स्टली. ए प्लस बी प्लस सी बाय में 2. व्हाट इज ए? ए इज 15 प्लस 12 प्लस 9 बाय में 2. इनको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2, इट विल बी इक्वल्स टू 18. ठीक, इट विल बी इक्वल टू 18. सो एस माइनस ए क्या होएगा? 18 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू 3. एस माइनस बी क्या होगा? 18 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 6. एंड एस माइनस सी क्या होगा? 18 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. तो ये तीन वैल्यूज़ आपके पास आ गई. ठीक है, तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई. नाउ बाय हेरोन्स फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी. इट इज़ अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. ठीक है, अंडर रूट एस, तो एस की वैल्यू क्या है? 18. 18 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9, यही वैल्यूज़ थी आपकी. इनको क्या करते हैं? इनको ओपन अप कर लेते हैं. अंडर रूट 18 को मैं क्या लिखूँगी? 2 मल्टीप्लाई 9, 3 को 3 ही रहने देते हैं और 6 को लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 एंड 9 एज इट इज़. ठीक है, देखो 9 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, मैंने बाहर निकाल लिया. 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, मैंने बाहर निकाल लिया. 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, मैंने बाहर निकाल लिया. तो ये आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखो एरिया ऑफ ए सी बी आ गया, एरिया ऑफ ए सी डी आ गया. मैं क्या करूँगी? अब दोनों को ऐड कर दूँगी. ठीक है, सी सी, तो मैं क्या करूँगी? एरिया ऑफ ए बी सी डी किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी? क्या होता है? ए सी बी का एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दिस 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट विल बी इक्वल टू 104 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपको क्या मिल गया? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी मिल गया. अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, तो यू हैव टू ऐड ऑन ऑल द साइड्स. तो एक साइड कितनी है हमारी? 12 है, एक हमारी 9 है, एक हमारी 17 और एक हमारी 8 है. इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 46 सेंटीमीटर. तो ये आ गया आपके फाइनल रिजल्ट्स. ये आ गया आपके फाइनल रिजल्ट्स. दिस इज़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी एंड दिस इज़ द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी. ठीक है, क्लियर हुआ सबको? नाउ जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. हेरोन्स फार्मूला के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, इनकी कैलकुलेशन लेंदी होती है, मैं हमेशा से कहती हूँ. तो आप कैलकुलेशंस को इजी बना के चलेंगे. ओके,
Your question number third is, write down two sides two sides of two sides of triangular field are 85 meter and 154 meter in length. Fine. And perimeter is 324 meter. You have to find in first part, you have to find the area of the field, and in the second part you have to find the length of the perpendicular from opposite vertex on the side measuring 154 meter. Fine. ये क्वेश्चन है आपका. Two sides of triangular fields are 85 and 154 meter in length. Perimeter दिया हुआ है आपको 324 meter. You have to find the area of the field firstly. Then you have to find the length of the perpendicular from the opposite vertex on the side measuring 154. Okay. So first of all, draw the figure. ये आपका एक ट्रायंगल है. This side is 85. Let it be this side is 154. This side we don't know, that I am marking it as x. तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड. देन आई हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू द साइड 154. तो ये क्या है, h है. ठीक है. एंड दिस इज 90 डिग्री. तो ये आपको फिगर दी हुई है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है, 324 मीटर है. वन साइड है 85 मीटर एंड अदर साइड is 154 meter. Third side is x, we don't know. So the perimeter is equals to a, let it be this is a, this is b, and this is c. The perimeter is a plus b plus c. So it will be equals to 324 equals a की वैल्यू 85 प्लस b की वैल्यू 154 प्लस c की वैल्यू x. तो x की वैल्यू आ गई 324 माइनस 85 माइनस 154. x की वैल्यू आती है हमारी 85 मीटर विच इज इक्वल्स टू c. तो हमारी थर्ड साइड भी निकल गई कितनी, 85. Now firstly you have to find the area of the field. So you have to find the semi perimeter which is p by 2, that is 324 by 2, which will be equals to 162 meter. ठीक है. How much, 162 meter. ठीक है. ये s की वैल्यू आ गई. नाउ s माइनस a क्या होगा, 162 माइनस व्हाट इज a की वैल्यू है 85 77 मीटर. s माइनस b 162 माइनस 154 वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर. And s minus c 162 minus 85 again which is 77 meter. ठीक है. Now you have to find the area of triangle by Heron's formula. Write down it. S minus a, s minus b, s minus c. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, what is s, 162 multiply s minus a कितना 77 multiply 8 multiply 77. ठीक है. अब देखो मैं 162 को क्या लिख सकती हूँ, आई वुड राइट 162 एज 9 मल्टीप्लाई 2 देन 77 देन 2 मल्टीप्लाई 2 देन 77. देखो 9 दो बार है तो मैंने 9 बाहर निकाल दिया, 2 4 बार है तो मैंने दो बार बाहर निकाल दिया, और 77 2 टाइम्स है तो मैंने 77 बाहर निकाल दिया. तो मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2772 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ this triangle. Now I have to find the height also. So area of triangle जो होता है ये किसके इक्वल होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. So half multiply what is base is 154
एंड व्हाट इज हाइट, हाइट वी डोंट नो, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2772, हमने ऑलरेडी निकाल लिया है. सो हाइट की वैल्यू क्या आ गई, 2772 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 154 इज इक्वल्स टू h. इन्हें कैंसिल करो, 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, इन्हें कैंसिल करोगे तो यू विल बी गेटिंग 36. तो h की वैल्यू आ गई 36 मीटर. दैट इज द हाइट, that is the length of the perpendicular from the opposite vertex measuring 154 is how much, 36 meter. फाइन, क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन. थोड़ा सा इजी भी है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा. इफ़ यू हैव कंसीडर्ड इफ़ यू हैव गेन द कंसेप्ट देन दिस क्वेश्चन इज रियली रियली वेरी इजी. ठीक है, क्लियर. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, A4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज ए ट्रायंगुलर park has sides 120 meter, 80 meter and 50 meter. A gardener has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does he need to plant? Find cost of fencing it with barbed wire at rate of rupees 20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. ये क्वेश्चन है आपका. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आया हुआ क्वेश्चन है आपके पेपर में. ठीक है, द क्वेश्चन इज अ ट्रायंगुलर पार्क इज देयर विच हैज़ साइड्स 120, 80 एंड 50. अ गार्डनर एक गार्डनर है, उसको इसके अराउंड फेंसिंग लगानी है और उसको इसके अंदर घास भी उगानी है. ठीक है, हाउ मच एरिया डज ही नीड टू प्लांट. आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है हाउ मच एरिया डज ही नीड टू प्लांट, मतलब यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, कि कितने पार्क में उसको घास उगानी पड़ेगी, कितना उसको प्लांटेशन करना पड़ेगा. यू हैव टू फाइंड द एरिया. देन यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 per meter, लिविंग द स्पेस ऑफ 3 meter वाइड फॉर अ गेट फॉर वन साइड. एक जगह पर आपको 3 मीटर की जगह छोड़नी है, फेंसिंग नहीं करनी है वहाँ पर, और फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द फिगर लाइक दिस इज़ अ ट्रायंगुलर पार्क. ठीक है, यहाँ पर है आपका छोटा सा गेट है इस तरह से. ठीक है, ये आपका गेट है, ये है A, ये है B, ये है C. दिस इज़ 50, दिस इज़ 80 एंड दिस इज़ 120, और ये है मान लो 3. ठीक, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. नाउ इट इज़ गिवन दैट व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड 120. सो A इज़ B इज़ 80 मीटर एंड C इज़ 20 मीटर. The rate of fencing, what is the rate of fencing it is ₹20 per meter. So first of all आपको फेंसिंग की बात की गई है. फेंसिंग कहाँ होती है, बाउंड्रीज पे होती है. तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या निकालनी है, ट्राइंगल की बाउंड्री. इसका मतलब क्या निकालना है, ट्राइंगल का पेरीमीटर. सो यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. So the formula for perimeter of triangle is what, A plus B plus C. What is A, 120 plus 80 plus 50. So it will be equals to 250 meter. It will be equals to 250 meter. So it is the perimeter of triangle. Now अब देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है
कि आपको 3 मीटर की जगह छोड़नी है, फेंसिंग नहीं करनी वहाँ पे, तो मैं इस पेरीमीटर से 3 मीटर माइनस कर दूँगी तो क्या मिलेगा, इस पेरीमीटर में से मैं क्या करूँगी, द लेंथ ऑफ फेंसिंग, द लेंथ ऑफ फेंसिंग इज़ 250 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँगी, 3 मीटर माइनस कर दूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 247 मीटर। यानी कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है जो गेट से अलग है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, 247 मीटर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, नाउ इफ़ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर इज़ ₹20। देन फॉर 247 मीटर, 247 मीटर के लिए कितनी होगी, 247 मल्टीप्लाई 20, इट विल बी इक्वल्स टू ₹4940। कितने की इक्वल हो जाएगी, 4940 रुपये। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया इसका। सबसे पहले हमने फेंसिंग की कॉस्ट ही निकाल ली है। ठीक है, अगर आपको अब देखो ये किसके इक्वल था, ये एस के इक्वल था, है ना, किसके इक्वल था, एस के इक्वल था। अब मैं एरिया की बात करूँगी तो मुझे क्या निकालना है, एस माइनस ए, तो ये किसके इक्वल होगा, 250 माइनस 120 दैट इज़ 130, एस माइनस बी 250 माइनस 80 विच इज़ इक्वल्स टू 170, and s minus c 250 minus 50 which would be equals to 200, है ना। now there is a small mistake that it is not s, it is p. तो if you have to find, this is not correct one, ये correct नहीं है, इसको नहीं लिखना आप, ये करेक्ट नहीं है। जो हमने s माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी निकाला, ये हमारा p था। हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है तो हम p का हाफ करेंगे, दैट इज़ 250 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 125 मीटर आएगा। आई एम सो सॉरी बच्चे, आई एम सो सॉरी। तो s माइनस ए क्या हो जाएगा, 125 माइनस 120 विच विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर। s माइनस बी आएगा 125 माइनस 80 विच विल बी इक्वल्स टू 45 meter, and s minus c that is 125 minus थर्ड साइड इज 50 ना, तो क्या आ जाएगा 75 मीटर। तो ये आ गया आपके तीनों। नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, दिस इज द फॉर्मूला ओनली। So applying the values, what is s की वैल्यू 125 मल्टीप्लाई s माइनस ए कितना है 5, s माइनस बी 45 एंड s माइनस सी इज 75। फाइन, अब क्या करो, अब इनको खोलो, इनको ओपन अप करो। 125 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई वुड राइट इट 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 को 5 एज इट इज़। इसको मैं क्या लिखूँगी, 5 मल्टीप्लाई 9 को मैं 3 मल्टीप्लाई 3, 75 को मैं क्या लिखूँ, 3 मल्टीप्लाई 25 दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, मैंने सबको ओपन कर दिया। 5 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार आया, 7 बार। तो मैं 6 बार इसको ले लेती हूँ और इसको क्या निकाल लेती हूँ, 3 बार बाहर निकाल लेती हूँ। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो कितनी बार आ गया, एक बार बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया, अब देखो, एक 3 बच गया और एक 5 बच गया, तो अंदर क्या बच गया 15, 5 3 जा 15, यानी कि 15 बच गया। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 3 जा 375 रूट 15। ठीक है, अब रूट 15 की वैल्यू डाल दो, या तो इसको एज इट इज छोड़ दो। रूट 15 की वैल्यू होती है 3.87। इफ़ यू विल मल्टीप्लाई इट यू विल गेट 1451.25 मीटर स्क्वायर। सो इट विल बी द एरिया ऑफ दिस फील्ड, यानी कि इतने एरिया में उसको ग्रास उगानी पड़ेगी, प्लांटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, दिस वॉज योर क्वेश्चन। ठीक, क्लियर हो गया सबको बहुत अच्छे से। सबसे पहले हमने ABC साइड से रेट ऑफ फेंसिंग लिखा, पेरीमीटर निकाला, उस पेरीमीटर में से हमने गेट का जो लेंथ था वो माइनस किया, क्योंकि गेट में फेंसिंग नहीं होगी तो हमने गेट को माइनस किया। टोटल फेंसिंग की लेंथ आ गई 247, उसको हमने कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया तो हमारी कॉस्ट आ गई। फिर हमने सेमी पेरीमीटर निकाला, उसको हमने ए साइड से सब्ट्रैक्ट किया, एरिया के फॉर्मूले में पुट किया बाय हेरोन्स फार्मूला, एंड हमने एरिया ऑफ प्लांटेशन यानी एरिया ऑफ फील्ड भी निकाल लिया। ठीक है, पेरीमीटर भी आ गया, फील्ड भी आ गया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी आ गई। ठीक है,
दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4th। सो आज के सेशन में हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, डू प्रैक्टिस देम। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन, थैंक यू।